ایران میں مہنگائی کے خلاف پرتشدد مظاہرے، اموات کی تعداد 2000 ہو چکی۔ برطانوی خبررساں ایجنسی رائٹرز کا دعویٰ، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں ایران پر پہلے فضائی حملہ کیا جائے، پھر مذاکرات کے دروازے کھولے جائیں۔ جوہری پروگرام اور بیلسٹک میزائل کے ٹھکانے ممکنہ اہداف۔ ایران پر پہلے حملہ کیا جائے، پھر سنجیدہ مذاکرات کیے جائیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ارادہ۔ نائب صدر جے ڈی وینس پہلے سفارتکاری کو موقع دینے کے حامی۔ پینٹاگون کی ایران کے خلاف ممکنہ کارروائیوں پر بریفنگ، ایران کے جوہری پروگرام اور بیلسٹک میزائل کے ٹھکانوں پر بمباری زیر غور۔ سائبر اٹیک یا ایران کے داخلی سیکیورٹی نظام پر حملہ بھی ایک آپشن۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، امریکہ کا ایران پر معاشی وار، نئی پابندیاں عائد، تہران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر اضافی 25% ٹیرف لگا دیا۔ ایران میں موبائل سروس جزوی طور پر بحال، صرف حکومت کی منظور شدہ ویب سائٹس تک رسائی حاصل۔ تہران میں سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری موجود، سادہ لباس میں سیکیورٹی اہلکار بھی عوامی مقامات پر تعینات۔ چھاپوں کے دوران امریکی ہتھیار اور گولہ بارود برآمد۔ ایرانی حکام کا دعویٰ، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف سے رابطے، مظاہروں اور ممکنہ ملاقات پر تبادلہ خیال۔ چین اپنے جائز حقوق کا تحفظ یقینی بنائے گا، ایران کی صورتحال پر گہری نظر ہے، ایران سے قومی استحکام برقرار رکھنے کی امید رکھتے ہیں۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ، ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکہ ایران کشیدگی خطے کے لیے تباہ کن صورتحال بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قطری دفتر خارجہ کے ترجمان کا رد عمل، اقوام متحدہ کا بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو ایران سے متعلق اپڈیٹ دیں، جہاں مظاہروں کے دوران 2000 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ برطانوی خبررساں ایجنسی رائٹرز کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے۔ ایک ایرانی عہدیدار کا حوالہ دے کر رائٹرز نے بتایا ہے کہ احتجاج کے دوران مظاہروں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو شرپسندوں نے نشانہ بنایا۔ شرپسندوں کی فائرنگ سے اموات ہوئی ہیں۔ ایران نے سرکاری سطح پر ابھی تک ہلاکتوں کے اعداد و شمار جاری نہیں کیے ہیں۔ جبکہ ایران کے خلاف ممکنہ کارروائیوں سے متعلق پینٹاگون کی بریفنگ، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں پہلے فضائی حملہ کیا جائے، پھر مذاکرات کے دروازے کھولنے چاہیے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق جوہری پروگرام اور بیلسٹک میزائل کے ٹھکانے ممکنہ اہداف ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ فضائی حملے، سفارتی دباؤ اور معاشی پابندیاں، ایران کے خلاف امریکہ میں کئی آپشن زیر غور۔ پینٹاگون کی بریفنگ کے مندرجات امریکی اخبارات سامنے لے آئے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ پہلے فضائی کارروائی، پھر سنجیدہ مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن جے ڈی وینس سفارتکاری کو پہلا موقع دینے کے حامی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ ایران کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام امریکہ کے اہداف میں شامل ہے۔ سائبر اٹیک یا داخلی سیکیورٹی نظام پر حملہ بھی ایک آپشن ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے کہا ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں جاری مظاہروں کے خلاف ایران پر فضائی حملے سمیت ممکنہ اقدامات پر غور کر رہے ہیں، تاہم سفارتی کوششوں کو ترجیح دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے تہران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا، جو فوری طور پر نافذ ہوگا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کشیدگی کم کرنے کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف سے رابطہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مظاہروں اور ممکنہ ملاقات پر تبادلہ خیال کیا۔ جبکہ ایران میں موجود پاکستانی طلباء اور شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ FIA کے مطابق سینکڑوں طلباء بارڈر کے ذریعے پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں۔ ایران کی موجودہ صورتحال کے باعث پاکستانی طلباء نے واپسی تیز کر دی ہے۔ FIA حکام کا کہنا ہے کہ ایران میں زیر تعلیم 100 سے زائد طلباء و طالبات وطن واپس پہنچے ہیں۔ ایران سے واپس آنے والوں میں سیاح خاندان بھی شامل ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ قومی بیانیے پر ہم آہنگی اور ریاست دشمن سوچ کے خلاف مشترکہ محاذ۔ DGISPR سے قومی پیغام عام کمیٹی کی ملاقات۔ پاک افواج کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار، مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ریاست دشمن بیانیے، دہشت گردی اور گمراہ کن پروپیگنڈے کے خلاف
मुश्तरका कौमी अज़्म नागुज़ीर करार। NPAC ने फितना अल-खवारिज और अफगान तालिबान की मजम्मत भी की। DGISPR ने कहा मौजूदा हालात में दाखिली सलामती और कौमी बयानिए पर इत्तेफाक राय वक्त की अहम ज़रूरत है। फितना अल-खवारिज TTP और TTA के हवाले से जामे गुफ्तगू हुई है, जिससे मुश्तरका मौक़िफ़ मजबूत हुआ है। टैंकर्स और वाटर हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वाटर कॉरपोरेशन के आला हुक्काम को मुतबादिल निज़ाम फौरी तौर पर नाफिज करने की हिदायत कर दी है। मोनिस अहमद ने रिपोर्ट तैयार की, आइए आपको दिखाते हैं। कराची वालों को पानी टैंकर से नहीं लाइनों के जरिए मिलेगा। मेयर कराची ने बड़ा फैसला कर लिया। शहर से वाटर कॉरपोरेशन के 7 हाइड्रेंट्स खत्म करने का फैसला हो गया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सरकारी वाटर हाइड्रेंट्स को बतदरीज खत्म किया जाएगा और शहरियों को पानी लाइनों के जरिए उनकी दहलीज तक पहुँचाया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक वाटर हाइड्रेंट से माहाना तकरीबन 30 करोड़ रुपए रेवेन्यू हासिल हो रहा है। ताहम इसके बावजूद शहरी पानी के लिए शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। वाटर हाइड्रेंट्स के नए कॉन्ट्रैक्ट्स जारी नहीं किए जाएंगे। मेयर कराची ने वाटर कॉरपोरेशन को हदायत दी है कि पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए मुतबादिल दिनों में हर इलाके को लाइनों के जरिए पानी फराहम किया जाए ताकि शहरी टैंकर्स पर इन्हिसार से निजात हासिल कर सकें। कराची में टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी बंद करने का फैसला। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के 7 हाइड्रेंट्स खत्म करके शहरियों की दहलीज तक पानी पहुंचाया जाएगा। चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन मुर्तज़ा वहाब ने हुक्काम को हिदायत दे दी हैं। देखिए, कराची का एक बड़ा मसला है पानी की कमी का, जिसकी वजह से शहरियों को हाइड्रेंट से पानी हासिल करता है टैंकर के ज़रिए। लेकिन अब मेयर कराची की जानिब से इंतहाई अहम फैसला सामने आया है। कहते हैं कि 7 जो सरकारी हाइड्रेंट्स हैं वाटर कॉरपोरेशन के, उनको बतदरीज ख़त्म किया जाएगा और शहरियों को उनकी दहलीज पे पानी फराहम किया जाएगा। इस फैसले की क्या तफसीलात हैं, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत थी कि पानी को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाए और पानी आम शहरी के नलकों पर आना चाहिए। तो उसको इम्प्लीमेंट कराते हुए मेयर कराची ने ये ऐलान किया 7 अजलाओं के जो एडिंस चल रहे थे उनको बंद करने के और उनको रीटेंडर ना करने का अहकाम दिए। 18 से 20 MGD पानी टैंकर्स के ज़रिए डेली बेसिस पर शहरियों को दिया जाता था। कोई मैकेनिज़्म बनाया तभी तो हमने ये हाइड्रेंट का कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया और नलकों के ज़रिए पानी लाने की कोशिश करें। ये बहुत बड़ा इक़दाम है कराची शहरियों के लिए। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद हमारे साथ मौजूद थे। मेयर कराची पैदर पर मीटिंग की वजह से मसरूफ़ है, लेकिन इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है, बताया जा रहा है कल इसका वो बाकायदा ऐलान भी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किस तरीके से अगले चंद माह में कोशिश ये की जाएगी कि बतदरीज हाइड्रेंट्स ख़त्म करके शहरियों को उनकी दहलीज पर पानी फराहम किया जाए। ठीक है मोनिस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। मोनिस अहमद डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद के साथ मौजूद थे और हुकूमत का मौक़िफ़ हमने आप तक पहुँचाया। आवाम का क्या मौक़िफ़ है ये भी आपको बता देते हैं। कराची में सरकारी हाइड्रेंट्स बंद करने के ऐलान पर आवाम तो परेशान हो गए। कहते हैं कि फैसले से पानी खरीदना मुश्किल हो जाएगा, निजी तौर पर चलने वाले वाटर टैंकर्स की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। मेयर कराची सिर्फ आवाम की मुश्किलात ही बढ़ा रहे हैं। इनके सिर्फ खुलेआम दावे ही होते हैं, आज तक एक चुआनी का काम नहीं कर सके हैं। पानी पहुंचाएंगे ये, आज तक जो फरमाया है वो आज तक पूरा तो किया नहीं है। इवन पानी अगर टैंकर कर देंगे ये तो और बड़ा बवाल मच जाएगा। जिन एरियाज़ में लाइन से पानी जाता ही नहीं है, पहुंच ही नहीं सकता। कुछ इलाकों में तो है, लेकिन टैंकर माफिया के खिलाफ तो इतना आसानी हो नहीं सकता। तो ये तो सिर्फ बोला ही गया है, अब देखिए अमल होता है कि नहीं होता है इस सिलसिले में। वेल के आगे कुछ भी हो सकता है। अगर मेयर कराची ने आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली तो मुझे यकीन है होगा कर लेंगे। क्या कराची में मेयर है? अगर मेयर होगा तो टैंकर बंद हो जाएंगे, रोड हवा भी नहीं आती है पानी की जगह। और अब देखते हैं कि इस फैसले पर कितना अमल दरामद होता है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रावलपिंडी का इलाका है बैरिया टाउन फेज़ 7। यहाँ गैस लीकेज से 3 ख़वातीन जाँ बहक हो गई हैं, जिनमें 60 साल की जीनत मुज़म्मिल, 70 साल की ज़ेबा मुज़म्मिल और 45 साल की खुर्शीद फातिमा शामिल हैं। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक बेहोश होने वाली 23 साल की नूर फातिमा निजी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी की इस्लामाबाद गैस लीकेज धमाके के मुतासरीन से इजहार ताज़ियत। यकीन दिलाया कि हुकूमत मुतासरीन को नए घर ज़रूर देगी। जो इनके घर डैमेज हुए हैं इसके मुतबादिल घर और जो घर काबिल मरम्मत हैं गवर्नमेंट की तरफ से हम CDA
इन घरों को असर नो तामीर करेगा और जो मुनदम हो चुके हैं उनकी जगह मुतबादिल घर कमज़दा ख़ानदानों को गवर्नमेंट की तरफ से दिए। बाकी जो गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन है उसका भी ऐलान किया जाएगा। जो पुरानी आबादियाँ हैं इसमें कुछ ऐसी आबादियाँ हैं कि जो कि CDA के क्वार्टर्स हैं जो कि यकीनन खस्ता हाल हो चुके हैं। इसमें कुछ ऐसी आबादियाँ हैं जो इस्लामाबाद की कच्ची आबादियाँ हैं। CDA जो है वो एक प्लान कर रहा है, उनको इंशाल्लाह रिट्रीव करके वहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बना के जो वहाँ पे लोकल लोग रह रहे हैं उन्हें वो जो जदीद तरीन अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे लो कॉस्ट, उनमें शिफ्ट करना, ये गवर्नमेंट की इस वक्त पॉलिसी है। आया एक बार फिर खेल से खिलवाड़, भारत में T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद ICC के लिए दर्द सर बन गया है। सिक्योरिटी खदशात खत्म न हुए, वीज़ा मसाइल शुरू हो गए हैं। भारत ने अमेरिका के 4 पाकिस्तानी निजात खिलाड़ियों के वीज़े मुस्तरद कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक तासुब के शिकार भारत ने अली खान, शायान जहांगीर, मोहम्मद मोहसिन और एहसान आदिल को वीज़े देने से इनकार कर दिया है। वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाली मुताद्दिद दीगर टीमों को भी वीज़ों के हुसूल में दुश्वारी का सामना है। UAE, इटली और कनाडा समेत दीगर टीमों में शामिल पाकिस्तानी निजात प्लेयर्स को वीज़े हासिल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। T20 वर्ल्ड कप वेन्यूज़ पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और ICC के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी फैसला ना हो सका। PCB ने एक बार फिर भारत में मैचेस ना खेलने से साफ इनकार कर दिया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि भारत में सिक्योरिटी खदशात हैं, वहां जाकर खेलना मुमकिन नहीं। बांग्लादेशी टीम के मैचेस भारत से बाहर किसी और मुल्क मुंतकिल किए जाएं। ICC ने कहा है कि शेड्यूल जारी हो चुका है, बांग्लादेश फैसले पर गौर करे। बांग्लादेशी हुकाम ने कहा है कि अपने खिलाड़ियों और कोचेस की सिक्योरिटी उनके लिए सबसे अहम है। वेलकम बैक। वज़ीर इत्तलात ने पाक अफगान सरहद से मुताल्लिक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया है। बैनुल अक़वामी सरहद को बैनुल अक़वामी सरहद ही समझना चाहिए। अता तारड़ की जानिब से कहा गया, बैनुल अक़वामी सरहद के मुताबिक ही अमल भी करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात की जानिब से ये कहा गया। सुहेल आफरीदी को ये बात फ़िलहाल समझ नहीं आ रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जानिब से ये कहा गया कि पाक अफगान सरहद से मुताल्लिक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। बैनुल अक़वामी सरहद को बैनुल अक़वामी सरहद ही समझना चाहिए, बैनुल अक़वामी सरहद के मुताबिक ही अमल भी करना चाहिए। सुहेल आफरीदी को ये बात फ़िलहाल समझ नहीं आ रही, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का ऐसा कहना है। गंदुम की किल्लत, गैर मुनसिफाना परमिट सिस्टम और मुबैना करप्शन की वजह से आटे का बहरान पैदा हो सकता है। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने गंदुम और आटे की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ओहदेदारान ने बताया है कि ओपन मार्केट में गंदुम की आमद कम होने से कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। सरकारी निर्खों पर आटे की दस्तयाबी भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। साबिक चेयरमैन एसोसिएशन आसिम रज़ा ने इल्ज़ाम लगाया है कि पंजाब की चेक पोस्टों पर रोज़ाना करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन हो रही है। पंजाब में गंदुम की यौमिया ज़रूरत 25,000 टन, लेकिन सिर्फ 7,000 टन दी जा रही है। गंदुम का शॉर्टफॉल शुरू हो चुका है। 8 लाख टन गंदुम सूबे के लिए नाकाफ़ी है। हुकूमत फौरी इक़दामात करे ताकि आटे के मुमकिना बहरान से बचा जा सके। हम वज़ीर आला पंजाब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो महकमा खुराक पंजाब से में करप्शन के खात्मे के लिए इक़दामात करें। गंदम और कोटे के बैनुल सूबाई नकलो हमल और पाबंदियाँ जो हैं वो ख़त्म की जाएं। जब तक पाबंदियाँ मौजूद हैं 10,000 टन परमिट रोज़ाना फंक्शनल फ्लोर मिल्स को बराबरी की बुनियाद पर दिया जाए। रावलपिंडी इस्लामाबाद की फ्लोर मिल्स के लिए डिवीज़न की जो आटे की तरसील के एवज परमिट जो गंदम के दिए जाते हैं उसके एवज 25% सरकारी नरहों पर जो आटा डिमांड किया जाता है इस शर्त को ख़त्म किया जाए ताकि मुस्तकबिल करीब में आटे की किसी किस्म की बहरान से बचा जाए और आटे की सप्लाई मार्केट में बरकरार रखी जाए। पाकिस्तान ने अगले 3 साल में 2 अरब 75 करोड़ डॉलर्स मालियत के इंटरनेशनल बॉन्ड्स जारी करने का मंसूबा बना लिया है। रवा माह के आखिर या फरवरी में 25 करोड़ डॉलर्स मालियत के पैंडा बॉन्ड के इजरा की तैयारी है। मज़ीद जान लेते हैं, नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शकील साहब, क्या फैसला हुआ है? देखिए, हुकाम वज़ारत ख़ज़ाना का ये कहना है कि मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल में बेहतरी आई है और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी जो है उन्होंने रेटिंग में भी बेहतरी की है और ऐसे में पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर जो हैं वो 21 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं, जिसमें स्टेट बैंक के पास 16 अरब डॉलर हैं और इस महीने या अगले महीने के शुरू में 25 करोड़ डॉलर का पैंडा बॉन्ड जारी किया जाएगा। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट से भी रुजू किया जाएगा। पैंडा बॉन्ड मजबूती तौर पर 1 अरब डॉलर तक ले जाया जाएगा और इसके अलावा अगले माली साल मजीद
$1.5 अरब के बॉन्ड जारी किए जाएंगे। तो 3 साल में मजमूई तौर पर $3.25 अरब के बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इसके लिए रोड शोज भी किए जाएंगे, क्योंकि अप्रैल में 1.3 अरब का यूरो बॉन्ड जो है वो मैच्योर हो रहा है। उसके बाद पाकिस्तान के पास कुशन होगा कि तवील मुद्दती बॉन्ड जारी कर सकें, और इसके लिए प्लान तैयार किया गया है और IMF को भी इस हवाले से बाकायदा आगाह किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका शकील अहमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकरात के ज़रिए इलाक़ाई मसाइल के पुरअमन हल पर ज़ोर, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी और तामीरी रवाबत जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ है। तो अहम खबर आ रही है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकरात के ज़रिए इलाक़ाई मसाइल के पुरअमन हल पर ज़ोर, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और करीबी और तामीरी रवाबत जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ है। बलूचिस्तान ग्रैंड अलाइंस और सूबाई हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। तनख्वाहों में इजाफे और DRA अलाउंस समेत दीगर मुतालबात मनवाने के लिए सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज दूसरे दिन भी जारी रहा। बलूचिस्तान ग्रैंड अलाइंस की जानिब से कल्लात, पशीन, लोरालाई, दालबंदीन, पसनी और मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया गया। अलाइंस के सरबराह अब्दुल कुद्दूस काकड़ ने वाज़े कर दिया है कि मुतालबात नहीं माने गए तो एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। 60 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किए जाने का भी इल्ज़ाम लगाया। सूबाई वज़ीर ख़जाना शुएब नौशरवानी ने कहा है कि DRA अलाउंस देने से तकरीबन 20 अरब रुपए का इजाफी माली बोझ पड़ेगा। ताहम मुशावरत जारी है। हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का भी मुकम्मल एहसास है। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के इजलास में सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि 2 एडिशनल जजेस को 6 माह की तौसी दे दी गई है। आईनी बेंच में भी मजीद जजेस 3 को शामिल किया गया है। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में जस्टिस खालिद हुसैन शाहानी और जस्टिस सैयद फैयाजुल हसन शाह को बतौर एडिशनल जज 6 माह की तौसी देने की मंजूरी दी गई है। 6 माह बाद दोनों जजेस को मुस्तकिल करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। जुडिशल कमीशन ने जिन जजेस की मुस्तकिली की सिफारिश की है उनमें जस्टिस मीरा मोहम्मद शाह, जस्टिस तस्लीम सुल्ताना, जस्टिस रियाजत अली सहर, जस्टिस मोहम्मद हसन अकबर, जस्टिस अब्दुल हमीद भरगी, जस्टिस जान अली जुनेजो और जस्टिस नासिर अहमद शामिल हैं। कमीशन के जस्टिस अली हैदर अदा, जस्टिस उस्मान अली और जस्टिस मोहम्मद जाफ़र रज़ा की मुस्तक़ली पर भी इत्तेफाक हुआ है। इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में मज़ीद जजेस शामिल करने की भी मंजूरी दी गई है। जस्टिस मोहम्मद हसन, जस्टिस मोहम्मद उस्मान और जस्टिस अमजद अली को आईनी बेंच का हिस्सा बना दिया गया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए डिजिटल मीडिया फ़हद हारून की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालकी से मुलाकात हुई है। बामी दिलचस्पी के उमूर, डिजिटल मीडिया और ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात के दौरान दोनों फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरीना दोस्ताना ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान डिजिटल मीडिया के शोबे में होने वाली पेशरफ्त और बदलते मीडिया रुझानात पर गुफ्तगू हुई। डिजिटल मीडिया और इब्लाग के शोबे में मुसलसल राब्ते और ताउन के आज़म का इयादा किया गया। मरीजों की जान बचाने वाले मसीहा भी जिस्मानी और जहनी दबाव का शिकार होने लगे हैं। तवील ड्यूटी और मुसलसल तनाव डॉक्टर्स में दिल के अमराज और बेचैनी का सबब बन रहे हैं। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं हामिदुर रहमान। दूसरों की सेहत का ख्याल रखने का मशवरा देने वाले डॉक्टर अपने तर्ज जिंदगी के सबब जिस्मानी और जहनी मसाइल का शिकार। कराची में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में माहिरीन के इंकशाफ ने हैरान कर दिया। माहिरीन का कहना है मुल्क भर में 60% से जायद डॉक्टर दिल की बीमारियों और जहनी थकन का शिकार हैं। 80% जिस्मानी तौर पर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। इंटरनेशनल डेटा मौजूद है, वो ये कहता है कि हर 10 में से 6 डॉक्टर्स जो हैं वो बर्न आउट हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, फटीग हो चुके हैं। और हमारे मुल्क में जो खुदकशी की शरह है डॉक्टरों की, वो आम लोगों के मुकाबले में ट्वाइस है, 2 गुना ज़्यादा है। माहिरीन कहते हैं जहनी दबाव और दबे हुए जज्बात बराह रास्त दिल और आसाबी निज़ाम को मुतासिर करते हैं। जगह जगह खड्डे हैं, रास्ते ब्लॉक हैं और आप अपने वक्त
وقت پہ پہنچ نہیں پا رہے بہت ساری جگہوں پہ، تو ظاہر ہے یہ آپ کی وہ بہت ساری چیزوں کی پریشانی کی وجہ بن رہی ہے، سٹریس کی وجہ بن رہی ہے، دباؤ کی وجہ بن رہی ہے۔ کانفرنس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ اگر ڈاکٹرز اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس کے اثرات مریضوں اور صحت کے نظام کو متاثر کر سکتے ہیں۔ کیمرہ مین ثناء اللہ کے ساتھ حامد الرحمان، سما، کراچی۔